ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ YouTube ਚੈਨਲ ਆਫ ਗਿਆਨਮ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ, ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਸਟ ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੋਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ, ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਔਰ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਅਗਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਅਗਰ ਕਰਵਡ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਫੈਨ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਐਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਔਰ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਥ੍ਰੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਰਿਜਿਡ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਥ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰਵੀਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਵਡ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਰਥ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਫੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ 7 ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਡ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ?
मीनस फंडामेंटल क्वांटिटीज तो जिवें आपां एरिया की गल करिए चलो एरिया उस तो बाद देखो जिवें स्पीड की गल की स्पीड का फॉर्मूला साडे कोल है डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस बटा टाइम ते स्पीड नूं मेजर करने लई सानूं दो चीज़ां दा पता होना चाहिए या तो डिस्टेंस का पता होना चाहिए ते या फिर साडे कोल टाइम सानूं पता मतलब दोनों पता होनी बहुत जरूरी है तां आपां किसी भी व्हीकल की किसी भी गड्डी की स्पीड नूं मेजर कर सकते हैं। उस तो बाद देखो असीं गल कीती सी कि फिजिकल क्वांटिटी नूं ही देखो जदों भी मैं वर्ड बोला फिजिकल क्वांटिटी तुहाडे माइंड दे विच इक उहदी छवि बन जानी चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज आपां कहंदे किहनूं है एक फिजिकल सिचुएशन नूं दस्सण वाली ਜਿਹੜੀਆਂ भी क्वांटिटीज हो सकदियां ने ਜਿਹੜਾ भी पैरामीटर्स हो सकते हैं वो सारियां फिजिकल क्वांटिटीज ਹੁੰਦੀਆਂ ने ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਰ ਔਰ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਚਾਹੀਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ लेकिन जो मान लो अगर तुसी किसी नू डायरेक्शन ना स्पेसीफाई करते हो डायरेक्शन भी तुहानू नाल दसनी पै रही है कि तुसी 5 किलोमीटर ना नॉर्थ की तरफ जाना है तुसी 5 किलोमीटर साउथ की तरफ जाना है तो उस टाइप की क्वांटिटीज नू बोलते हैं वैक्टर क्वांटिटी जिन्हां दे नाल डायरेक्शन भी तुहानू दसनी पैंदी है ते जिहड़ियां क्वांटिटीज दे नाल डायरेक्शन तुहानू नहीं लगानी पैंदी तुहानू नहीं दसनी पैंदी उन्हां क्वांटिटीज नू स्केलर क्वांटिटीज बोलिया जाता है राइट। ये आपां लास्ट वीडियो नू ही जस्ट एक डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इहनू डिस्कस करती हूं। उस तो बाद देखो आप गल की सी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दे विच की डिफरेंस हुंदा है ठीक है तो पॉइंट्स लिखे हुए ने डिस्टेंस जिहड़ा है हमेशा एक पॉइंट याद रखना है कि डिस्टेंस जिहड़ा है हमेशा डिस्प्लेसमेंट तो या तो बड़ा होएगा या फिर इक्वल होएगा। इक्वल होने का मतलब है कि बॉडी अगर एक मान लो सीधे रस्ते विच मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन पाथ दे विच मूव कर रही है तो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे राइट। अदरवाइज डिस्टेंस जिहड़ा है वो डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा ज्यादा ही होएगा क्लीयर है। उस तो बाद देखो यूनीफॉर्म मोशन की गल करांगे नॉन यूनीफॉर्म मोशन की गल की सी आपां लास्ट वीडियो दे विच कि यूनीफॉर्म मोशन वो मोशन नूं बोलिया जांदा जिहदे विच बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम दे विच कवर करदी है जिवें मैं तुहानूं कहा सी कि फैन दी मोशन है एक फैन जिहड़ा ना वो अपना एक सर्कल कंप्लीट करन दे विच जिन्ना फ्रैक्शन ऑफ जिन्ना सैकेंड दा किनवा भी हिस्सा लगांदा है ओही टाइम वो अगला सर्कल कंप्लीट करन दे विच लगांदा है तो मतलब उन्हें इक्वल डिस्टेंस कवर कीता वो भी इक्वल टाइम दे विच ठीक है बराबर डिस्टेंस कवर किया बराबर टाइम दे विच ठीक है। उस तो बाद देखो असीं गल कीती सी नॉन यूनीफॉर्म मोशन दी विच मैं तुहानूं एग्जांपल भी दित्ती सी कि तुसीं सवेर दे टाइम ते जदों घरों ऑफिस जांदे हो तो तुसीं घट टाइम लैंदे हो लेकिन शाम दे टाइम ते जदों ऑफिस तो घर आंदे हो तुसीं ज़्यादा टाइम लैंदे हो उल्टा भी हो सकता है ठीक है। लेकिन गल ये है कि डिस्टेंस बराबर है तुहाडे ऑफिस दा ते तुहाडे घर दा डिस्टेंस बराबर है लेकिन टाइम देखो डिफरेंट है टाइम अलग है ते उस टाइप दी मोशन नूं आपां की कहांगे नॉन यूनीफॉर्म मोशन कहांगे ठीक है। उस तो बाद देखो आप गल की स्पीड की स्पीड जिहड़ी है वो बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम दे नाल आपां उहनूं मेजर करदे हां इस तो साडे कोल 3 फॉर्मूले बने सी पहला फॉर्मूला देखो साडे कोल स्पीड देखो सबसे पहला साडे कोल फॉर्मूला है सब तो पहला जिहड़ा आपां फॉर्मूला स्टडी कीता सी स्पीड दा वो साडे कोल है डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है। एक सेकेंड यस ये फॉर्मूला है साडे कोल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। दूसरा फॉर्मूला अगर आप डिस्टेंस निकालना हो तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं स्पीड मल्टीप्लाई टाइम टाइम निकालना हो डिस्टेंस और स्पीड की हेल्प के नाल ते आप फॉर्मूला लगा सकते हैं स्पीड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एवरेज स्पीड की गल की सी एवरेज स्पीड किवें कैलकुलेट करते हैं कि टोटल डिस्टेंस बॉडी ने कितना कवर किया है तो किन्ने टोटल टाइम दे विच कवर किया है ठीक है। उस तो बाद देखो एक नीचे एग्जांपल भी लिखी हुई है इनू आप लास्ट वीडियो विच बहुत डिटेल नाल स्टडी कर चुके हाँ। उस तो बाद देखो आप गल की सी वेलोसिटी दी वेलोसिटी की है कि जो स्पीड नू ही आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे नाल कनैक्ट कर दिंदे हां स्पीड दे नाल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कनैक्ट कर दिंदे हां ते ओह साडे कोल की बन जांदी है वेलोसिटी बन जांदी है ठीक है। ते वेलोसिटी दा फार्मूला साडे कोल की हुंदा है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम देखो आ फार्मूला लिखा होया है वेलोसिटी दा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। ऐसा यूनिट जिहड़ी हुंदी है ओह हुंदी है मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड ठीक है। ते देखो बच्चों जेड़े भी तुसी डिफरेंस स्पीड अते डिस्टेंस अते डिस्प्लेसमेंट दे विच पढ़ चुके हो ओही सारे तुसी डिफरेंस वेलोसिटी और स्पीड दे विच भी
पढ़ने ने। मीनस कि जिवें डिस्टेंस साडे कोल स्केलर क्वांटिटी है, एवें डिस्प्लेसमेंट साडे कोल वैक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो साडे कोल स्पीड भी जिहड़ी है वो स्केलर क्वांटिटी होएगी। ठीक है, साडे कोल अगर डिस्प्लेसमेंट वैक्टर क्वांटिटी है तो साडे कोल वेलोसिटी भी वैक्टर क्वांटिटी ही होएगी। ठीक है, उस तो बाद ये दो फॉर्मूले तुसी नोट करने ने इत्थे कि एवरेज स्पीड अगर साडे कोई यूनिफॉर्म मोशन है, कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन दे विच मूव कर रही है तो एवरेज स्पीड दा फॉर्मूला कि एवरेज वेलोसिटी दा फॉर्मूला किवें आपां कैलकुलेट करदे हां, इनिशियली वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटा 2। अगर आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन दे लई तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। ठीक है, देखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दे विच की अंतर है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दे विच ये अंतर है कि उत्थे आप डिस्टेंस की गल कर रहे हैं स्पीड दे विच, लेकिन वेलोसिटी की गल करते हैं फिर आप डिस्प्लेसमेंट की गल करते हैं। ठीक है, उस तो बाद देखो आप लास्ट वीडियो दे विच ये लास्ट टॉपिक आप स्टडी कीता सी इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी साडे कोल की हुंदी है। इंस्टेंटेनियस मतलब नाम तो ही पता चलिया ना, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ते जेडी आप स्पीड कैलकुलेट करते हैं। जिवें कि कई बार की हुंदा पुलिस अगे खड़ी हुंदी है वो साडी स्पीड कैलकुलेट करती है कि आप किते ज्यादा हाई स्पीड दे नाल तां नहीं चल रहे या लो स्पीड दे नाल, चलो लो ते तां चलान नहीं कटोंदा बट हाई स्पीड ते चलान कटो जांदा। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ स्पीड ਨੂੰ कैलकुलेट करती है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ स्पीड ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ स्पीड ਨੂੰ कैलकुलेट ਕਰਦੇ ਨੇ। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ वेलोसिटी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। यूनिफॉर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने लिए कि यूनिफॉर्म मोशन की जो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ यूनिफॉर्म मोशन के केस विच स्पीड दे वेलोसिटी दे विच कोई भी चेंज नहीं आता। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम दे विच, तो मतलब ना तो ओदी वेलोसिटी बढ़ रही है ना ओदी वेलोसिटी घट रही है, तो वेलोसिटी दे विच चेंज नहीं आए तो मतलब आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी दे विच चेंज कितना है, 0 है। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी चेंज होएगी और चेंज इन वेलोसिटी टाइम दे नाल जिहड़ी वेलोसिटी चेंज हो रही है उन्होंने असीं की बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये साडा सी लास्ट वीडियो का टॉपिक जिन्होंने मैं फटाफट तुहाडे नाल डिस्कस किया है। हुण असीं गल करदे हां इस तो अगे आपां की पढ़ना है मोशन चैप्टर दे विच। ठीक है, तो देखो असीं लास्ट किथे डिसकंटिन्यू कीता सी, एक्सेलरेशन उत्ते। जिवें मैं तुहानूं कल भी दस्सिया सी कि जिवें आपां स्कूटी या गड्डी वगैरह चलाते हैं फिर आपां की करदे हां एक्सेलरेट जदों असीं एक्सेलेटर प्रेस करते हैं तो साडी गड्डी की स्पीड या ते वध जांदी है। ठीक है, अगर उन्होंने रिलीज कर दें उन्होंने छड़ दें तो साडी गड्डी की स्पीड घट जाती है, वेलोसिटी घट जाती है। तो देखो चेंज लियाना किहदे विच, वेलोसिटी दे विच चेंज लियाना टाइम दे विद रिस्पेक्ट टू उन्होंने असीं बोलते हैं एक्सेलरेशन। इन्हूं आपां होर डिटेल च स्टडी कर लैंदे हां। ठीक है, देखो नैक्सट स्लाइड दे विच देखो की लिखा होया, बहुत ही आराम नाल इन्हूं पढ़ना है क्योंकि जिहड़ा पिछला साडियां स्लाइड सी वो आपां लास्ट वीडियो दे विच कवर कर चुके सी। हुण वाली जिहड़ियां स्लाइड आ तुहाडे लई नवीं स्लाइड्स ने। ठीक है, तो देखो सबसे पहला गल करांगे एक्सेलरेशन दी। एक्सेलरेशन दी एक्सेलरेशन दा मतलब हुंदा है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कि टाइम दे नाल वेलोसिटी किवें चेंज कर रही है, उन्होंने आपां की बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन दा फॉर्मूला साडे कोल की हुंदा, अगर मैं सिंपल गल करां वेलोसिटी बटा टाइम। वेलोसिटी नूं जदों असीं टाइम दे नाल डिवाइड कर दिंदे हां जां फिर आपां कहिए कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, उन्होंने आपां बोलदे हां एक्सेलरेशन। और इहदी यूनिट हुंदी है साडे कोल मीटर पर सेकंड दी पावर 2, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मैं एक बार लास्ट विच कंक्लूजन जरूर कर दांगी मोशन चैप्टर दा। हुण आपां गल कर रहे हैं एक्सेलरेशन दी। ठीक है, उस तो पहला जो आपां शुरुआत कीती सी आपां गल कीती सी डिस्टेंस दी, डिस्प्लेसमेंट दी, फिर आपां गल कीती सी स्पीड दी ते वेलोसिटी दी। हुण आपां गल कर रहे हैं एक्सेलरेशन दी। एक्सेलरेशन हुंदी है वेलोसिटी बटा टाइम। ठीक है, जिवें साडे कोल मोशंस दियां भी दो टाइप हुंदियां ने, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवें ही साडे कोल एक्सेलरेशन दियां भी दो टाइप्स हुंदियां ने, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैं एक बार फिर तो पिछली स्लाइड दे विच जाके तुहानूं दस देनी है कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, फटाफट इनू पढ़ो तुसी एक बार की लिखा है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुंदा जदों कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम दे विच। ठीक है,
मतलब कि अगर तुसी पखे की जिहड़ी स्पीड है वो चेंज नहीं कर रही, यही मतलब होया ना इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम दे विच कवर करन दा कि पखे की स्पीड नहीं चेंज कर रही। अगर तुसी पखे नूं 1 नंबर उत्ते सैट कीता तां पखे की स्पीड स्लो चलेगी, 2 नंबर ते सैट कीता तां उहदी उन्नी ही चलेगी स्पीड, 3 नंबर ते सैट कीता तां उहदी स्पीड चेंज करेगी। बट जदों तुसी उहनूं 1 नंबर ते सैट कर दिता, फिक्स कर दिता, तां पखे की जिहड़ी स्पीड आ वो चेंज नहीं करेगी। ठीक है, उस टाइप दी मोशन नूं बोलिया जांदा है यूनीफॉर्म मोशन। नॉन यूनीफॉर्म मोशन दे विच की हुंदा कि तुहाडी स्पीड चेंज कर रही है, तां ही तां तुसी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दे विच। ठीक है, उस तो बाद देखो हुण आपां उसे स्लाइड उत्ते वापस जाने हां जिहदे विच आपां एक्सेलरेशन पार्ट नूं स्टडी कर रहे सी कि यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन दे विच की हुंदा है कि ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन। पहली गल है कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन दे विच मूव कर रहा, ठीक है, दूसरा है कि इहदी वेलोसिटी दे विच चेंज जेड़ा है ना वो इक्वली होना चाहिए इक्वल टाइम दे विच, उन्होंने आप बोलते हाँ यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन, उन्होंने आप की बोलते हैं यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनीफॉर्म मोशन दे विच आप डिस्टेंस की गल करते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन दे विच आप वेलोसिटी की गल कर रहे हैं कि वेलोसिटी दे विच जेड़ा चेंज आ रहा है वो इक्वली आ रहा है इक्वल टाइम दे विच। ठीक है, उस तो बाद देखो नॉन यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन की गल करांगे। नॉन यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन दे विच की होएगा कि वेलोसिटी दे विच जेड़ा चेंज आ रहा है, वेलोसिटी दे विच जेड़ा चेंज आ रहा है, मतलब वेलोसिटी दे चेंज की हो सकदा, या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, वो अनइक्वल अमाउंट दे विच होएगा, वो अनइक्वल अमाउंट दे विच होएगा। ठीक है, इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ? ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी साडे कोल वेक्टर है, वेलोसिटी क्वांटिटी साडे कोल वेक्टर है और एक्सेलरेशन क्वांटिटी साडे कोल वेक्टर है। दूसरा अगर देखो दी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है उन्होंने असी बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर किसी भी बॉडी दी वेलोसिटी बढ़ रही है, जिवें मान लो बस स्टॉप ते बस खड़ी है, ठीक है, जो बस चलना शुरू कर दी है तो पहला ओदी वेलोसिटी कितनी सी? 0। पहला तो बिल्कुल रेस्ट ते सी ना, ओदी कोई वेलोसिटी नहीं सी, कोई स्पीड नहीं सी ओदी। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 0 ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ 0 ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 40 ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਸ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੱਛੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 0, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 40 ਤੋਂ 0 ਆਉਣ ਲਈ ਘਟਿਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ। ठीक है, ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ने, आराम ना तुसी इनू स्टडी करना है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब की होया कि जो साडे कोल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होंदा जो साडे कोल वेलोसिटी घट रही है। क्लियर है? उस तो बाद देखो असीं गल करते हां, एक क्वेश्चन है साडे कोल, एमसीक्यू क्वेश्चन है, किसी भी पार्टिकल दी टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वी नीड, साडे कोल 4 ऑप्शन ने, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल या फिर साइज ऑफ पार्टिकल सानू पता होना चाहिए पोजीशन नू लोकेट करने लिए, या फिर सानू दा मास पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स बिल्कुल इदा आंसर बिल्कुल इजी है। पहली ही स्लाइड दे विच मैं दस्सिया सी कि रेफरेंस पॉइंट दा बड़ा जरूरी काम है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत जरूरी होना चाहिए साडे कोल किसी भी पार्टिकल दी पोजीशन नू लोकेट करने लिए। अगर मान लो तुहाडे लागे कोई बुक पई है, तुसी उन्हें एक रेफरेंस के नाल दसोगे, ठीक है। अगर मान लो तुसी अपने किसी फ्रेंड नू किसी जगह का एड्रैस दसना है, तुसी उन्हें रेफरेंस के नाल दसोगे कि इत्थों चल तू खब्बे दी तरफ आ, फिर सज्जे दी तरफ 5 किलोमीटर चल, 5 स्टैप चल अगे, जिवें भी तुसी दसोगे तुसी उन्हें एक रेफरेंस के नाल उहदी पोजीशन नू दस सकदे हो किसी भी ऑब्जेक्ट दी। ठीक है, उस तो बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन साडे कोल की है
कि ए बस ट्रैवल बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सॉरी एक बस ट्रैवल कर रही है दो पॉइंट दे विच ए पॉइंट है साडे कोल ए ठीक है दूसरा पॉइंट है साडे कोल बी राइट v1 एंड v2 आर इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी अच्छा a तो b तक कोई भी रास्ता ले सकती है मान लो मैं कोई टेढ़ा जिहा रास्ता बना लिया ठीक है a तो b पॉइंट तक आने विच उन्हें कोई टेढ़ा जिहा रास्ता अपनाया कोई भी टेढ़े रास्ते विचों a तो b पॉइंट उत्ते कोई बॉडी बस नाम दिता है उन्होंने कि बस पुजी है a पॉइंट तो b पॉइंट दे विच बस गई है ठीक है और उदी एवरेज स्पीड कितनी है v1 मतलब एवरेज स्पीड साडे कोल कितनी आ गई v1 एवरेज वेलोसिटी साडे कोल की होएगी v2 एवरेज वेलोसिटी साडे कोल की होएगी v2 तो उन्हें क्या कि इहदे विचों केड़ा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है सबसे पहला ऑप्शन मिलता कि v1 ग्रेटर देन है v2 मैं कहती है बिल्कुल सही ऑप्शन है पर ट्विस्ट है हले भी ट्विस्ट की है देखो सॉरी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ v1 और v2 ਦੀ ਤਾਂ v1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਔਰ ਸਪੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ अगर तुहानू कंफ्यूजन हो रही है तो तुसी एक पॉइंट अपनी कॉपी दे विच नोट डाउन करो कि डिस्टेंस साडे कोल डिस्टेंस is always greater than equal to displacement distance is always greater than equal to displacement एक पॉइंट तुसी अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो और स्पीड किदे ते डिपेंड करती है डिस्टेंस उते और अगर डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट तो ग्रेटर या इक्वल हो सकती है इहदा मतलब ये भी होया कि साडे कोल एवरेज स्पीड हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल हो सकती है एवरेज वेलोसिटी तो फिर तो साडे कोल ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट हो गए इस करके आपका बेटर ऑप्शन साडे कोल की है कि आपा ए लिख दिए कि डिपेंड करेगी सिचुएशन उते ये डिपेंड करेगी सिचुएशन उते कि उस बस दी एवरेज स्पीड ग्रेटर है एवरेज वेलोसिटी तो या फिर उदी एवरेज स्पीड बराबर है एवरेज वेलोसिटी ते और डिपेंड करेगी सिचुएशन उते ठीक है अगर देखो ए और बी पॉइंट दे विच सीधा रास्ता है ए और बी पॉइंट दे विच बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है फिर वो बराबर होएगी फिर साडे कोल की होएगी ये मैं एरो पा दिता इत्थे ठीक है फिर ये साडे कोल होएगी बराबर लेकिन अगर वेलोसिटी सॉरी एवरेज स्पीड साडे कोल बड़ी है ग्रेटर है एवरेज वेलोसिटी तो साडे कोल पाथ जिगजैग कुछ भी हो सकता रैंडम पाथ कोई भी रैंडम पाथ हो सकता बेटर ऑप्शन साडे कोल की है कि ਅਸੀਂ टिक कर दिए कि डिपेंड करेगी सिचुएशन उते क्योंकि उन्हें किते भी क्वेश्चन दे विच मेंशन नहीं किया कि बस केड़ा रास्ता फॉलो कर रही है ठीक है हुण ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ अगले क्वेश्चन की तरफ ठीक है देखो क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज द स्पीडोमीटर मेजर केप्ट इन मोटर बाइक ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਉੱਤੇ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੂਲਸ ਬਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ स्पीड नु और किस चीज नु मेजर कर दिया इंस्टेंटेनियस स्पीड नु कि तोड़ी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट उते कितनी स्पीड है ठीक है उस तो बाद देखो हुन आपां गल करदे हां बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी ठीक है ते मैं इत्थे इको ग्राफ दे विच तुहानू बहुत सारे कंडीशंस दस्सियां ने इस ग्राफ नु आपां जदों डिटेल दे विच स्टडी करांगे देखो सब तो पहला मैं गल करांगी पिंक लाइन दी ठीक है सब तो पहला मैं गल करांगी पिंक लाइन देखो पिंक लाइन दे विच की होएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बनेगा एक साइड आप डिस्टेंस लवांगे
दूसरी साइड आप एक्सिस लवांगे ते ये ग्राफ ऊपर की तरफ वध रहा, ये जो पिंक वाली लाइन है साडे कोल ऊपर की तरफ वध रही है। अगर साडे कोल डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे विच लाइन जिहड़ी है ना वो इस तरह ऊपर की तरफ लाइन दे विच वध रही है, उन्होंने आप बोलते हैं कि बॉडी जिहड़ी है ना वो स्टेडी स्पीड दे विच मूव कर रही है। स्टेडी स्पीड का मतलब हुंदा कि कांस्टेंट स्पीड दे नाल मूव कर रही है, उसकी स्पीड जिहड़ी है चेंज नहीं कर रही। मैं इसनू अलग अगर बनाना हो मैं इसनू सिंपल एवें भी बना सकती हूँ, ठीक है। इस साइड मेरे को आ जाएगा डिस्टेंस, इस साइड मेरे को आ जाएगा टाइम। दूसरा देखो पिंक लाइन दे विच ये भी एक ग्राफ है, ये जो ग्राफ पहली जी लाइन बनी है साडे कोल जिहड़ी स्टेडी स्पीड दी है वो लाइन साडे कोल एक स्लोप की तरह बनी है, एक ढलान की तरह बनी हुई है। लेकिन जी दूसरी लाइन जिते आप स्टेशनरी जिन्होंने मैं मैंशन किया है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और टाइम लाइन दे नाल की है पैरेलल है। इहदा मतलब की होया कि बॉडी जिहड़ी आ वो रेस्ट उत्ते है, बॉडी की है रेस्ट उत्ते है, ठीक है। स्टेशनरी का मतलब की हो गया रेस्ट, बॉडी की है रेस्ट उत्ते है, बॉडी रेस्ट स्टेट ते है, ठीक है। उस तो बाद देखो जेड़ा पिंक लाइन की अगर मैं गल करा तो जी तीसरी लाइन है यदी नीचे की तरफ जी आ रही है जिहदे उत्ते मैं लिखा है रिटर्निंग टू स्टार्ट, ये लाइन उपरों नीचे की तरफ आ रही है। इहदा मतलब है कि एक तो उसकी स्पीड घट गई ते वो जिथों चली सी उसी पॉइंट उत्ते वापस आ गई, ठीक है। मान लो ये मैं पिंक लाइन अगर दसना हो तो मैं कहूँगी कि पहले तुसी ये गई, पहले तुसी अपने घर तो किसी जगह ते गए, मान लो तुसी दुकान उत्ते गए, तुसी दुकान उत्ते खड़े, ये तुसी दुकान उत्ते खड़े और ये तुसी दुकान तो वापस अपने घर आ गए, क्लीयर है, ठीक है। ते जो डिस्टेंस बढ़ता है तुहाडा घर की हो गया एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। अगर रेफरेंस पॉइंट तो रीजन तो तुहाडा डिस्टेंस बढ़ रहा है तो तुसी उन्हें इस तरह मेंशन करोगे। अगर तुसी खड़े हो दुकान उत्ते तो तुसी उन्हें इस तरह मेंशन करोगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दे विच। अगर मैं सिंपली रेस्ट का ग्राफ बनाना होवे तो मैं उसनू इस तरह बना सकती हूँ, ठीक है। और अगर तुसी वापस उसी रेफरेंस पॉइंट पे वापस आ रहे हो तो वो लाइन साडे को ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, क्लियर हो गया। पिंक लाइन तो समझ आ गई। उस तो बाद देखो ब्लू लाइन की अगर मैं गल करा, ब्लू लाइन भी तो साडे कोल लीनियर दे विच लाइन ही है ना, एक कर्व नहीं है। जिवें ग्रीन लाइन देखो एक कर्व्ड पाथ है, ग्रीन लाइन साडे कोल एक कर्व दे विच है, कर्व समझ रहे हो, लाइन नहीं है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक कर्व पाथ दे विच है, ठीक है। तो जिहड़ी ब्लू लाइन है तो वो भी स्टेडी स्पीड है लेकिन वो स्पीड थोड़ी फास्ट है, समझ रहे हो। तुसी दुकान पे गए लेकिन तुसी बड़ी जल्दी जल्दी गए, ठीक है, कंपैरेटिवली पिंक लाइन दी स्टेडी स्पीड दे, ठीक है। उस तो बाद मैं गल करांगी ग्रीन लाइन दी, तो ग्रीन लाइन दे विच मैं लिखा है कि गेटिंग फास्टर। ग्रीन अगर जो तुहाडे कोल कर्व्ड लाइन होवी इहदा मतलब है कि तुहाडी स्पीड इक्को जी नहीं है, वो की कर रही है वधी जा रही है वधी जा रही है वधी जा रही है, तां साडे कोल लाइन की बनेगी कर्व्ड लाइन बनेगी, ठीक है। तां साडे कोल ग्राफ देखो किने बन गए, पहला ग्राफ बनेगा जो बॉडी रेस्ट ते है तो ग्राफ साडे कोल बनेगा ए वाला। दूसरा ग्राफ अगर साडे कोल बॉडी की स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है स्टडी स्पीड है तो ग्राफ साडे कोल बनेगा इस तरह। बॉडी वापस अपनी पॉइंट ते आ रही है, अपनी ओरिजिन पोजीशन ते वापस आ रही है तो ग्राफ साडे कोल बनेगा ए वाली कंडीशन। तीसरा चौथा आप स्टडी करांगे कर्व्ड वाला कि जो बॉडी दी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होएगी, ठीक है। उस तो बाद देखो हुण बॉडी दी मोशन की हो सकती है, मतलब बॉडी जिहड़ी है या तो उसकी स्पीड बढ़ी जाएगी बढ़ी जाएगी बढ़ी जाएगी या फिर उसकी स्पीड की होएगी कटी जाएगी कटी जाएगी कट जाएगी कट जाएगी कट जाएगी और कट जाएगी, ठीक है। फिर क्या होएगा, अगर इंक्रीजिंग स्पीड है तो ग्राफ साडे कोल बनेगा इस तरीके नाल, ऊपर की तरफ जा रहा है जाई जा रहा है ऊपर की तरफ जाई जा रहा है, ठीक है। और अगर साडे कोल डिक्रीजिंग स्पीड है तो ग्राफ साडे कोल की बनेगा इस तरीके नाल बनेगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन तुहाडे लई, तुसी मैनूं ये दसना है कि ये जिहड़ा ग्राफ है ये तुसी मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच जाके दस सकदे हो कि ये साडे कोल जिहड़ा ग्राफ है ये किस मोशन नूं रिप्रेजेंट करता है, या कह लवां कि ऑब्जेक्ट दी किस स्टेट नूं रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कि ये ग्राफ पॉसिबल भी है या नहीं है, ठीक है। जो भी तुहाडा आंसर होएगा तुसी उहनूं कमेंट सैक्शन दे विच जाके जरूर दस देना मैनूं, ठीक है। उस तो बाद देखो असीं गल करांगे ये अलग अलग डिस्टेंस टाइम ग्राफ नूं मैं दोबारा पहले मैनूं एक ग्राफ दे विच एक्सप्लेन कर दिता। हुण देखो अगर अलग अलग दी गल करा, पहला ग्राफ की मेंशन कर रहा है
ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਸਟੇਟ ਤੇ ਹੈ। दूसरा ग्राफ की स्पीड कर रहा है, स्टेडी स्पीड नु मेजर कर रहा है, स्टेडी स्पीड नु। तीसरा ग्राफ भी स्टेडी स्पीड नु है लेकिन पार्टिकल अपनी रेफरेंस पॉइंट ते वापस आ रहा है। एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्थ वाला नीचे की तरफ, ये वाला फोर्थ वाला ग्राफ जिहदे ते मैं पॉइंटर रखा है, ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा कि उदी इंक्रीजिंग स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा, फिफ्थ वाला ग्राफ सानू रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस ग्राफ जिहड़ा पार्टिकल है ऑब्जेक्ट है वो साडे कोल डिक्रीजिंग स्पीड दे विच है। ठीक है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि उदी स्पीड स्टेडी स्पीड है बट थोड़ी स्लो है। मतलब अगर मैं इन्हां दोनों ग्राफ नू कंपेयर करा तो इहदे विच स्पीड फास्टर है। ठीक है, थोड़ा पार्टिकल की स्पीड है कांस्टेंट है लेकिन ज्यादा है। मान लो इत्थे 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर पर आ, मान लो इस ग्राफ उत्ते स्पीड जेडी आ 60 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, और ये वाला ग्राफ सानू दस रहा है कि उदी स्पीड 40 किलोमीटर, कितनी 40 किलोमीटर है उदी स्पीड। मतलब उससे पूरे रस्ते नू 40 किलोमीटर दे नाल ही कवर कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर दी स्पीड नाल। तो दोनों दे विच देखो की डिफरेंस नजर आ रहा है तुहानू कि दोनों दे विच जिहड़ा लाइन बन रही है उदी ढलान, उदी स्लोप साडे कोल की है डाउनवर्ड दी तरफ है। एक दे विच अपवर्ड दी तरफ है, ऊपर दी तरफ है, दूसरे ग्राफ दे विच डाउनवर्ड दी तरफ है। ठीक है, उस तो बाद देखो गल करांगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी। एक बार देखो स्पीड टाइम ग्राफ नू तुसीं फटाफट स्टडी कर लो कि पार्टिकल दी किवें किवें दी पोजीशंस हो सकदियां ने। दो ग्राफ साडे कोल ए ने जो इंक्रीजिंग स्पीड नू दसदे ने, डिक्रीजिंग स्पीड नू दसदे ने। ਹੁਣ देखो पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ਦੀ। ठीक है, मतलब एक साइड में वेलोसिटी ले ली है और दूसरी साइड में टाइम लिया। तो रेड लाइन की अगर मैं गल करा, रेड लाइन की जी ए लाइन है ऊपर की तरफ जा रही, इसका मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब की है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर मैं इस लाइन की गल करा, ये सानू दस रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। मतलब वेलोसिटी साडे कोल की है इक्को जी है, कांस्टेंट है। जिवें देखो वेलोसिटी दी 8, ए रहा 8 वाली पॉइंट, ए वाला 8 वाला पॉइंट टाइम चेंज कर रहा है। टाइम जो है ना 4 सेकंड तो देखो 7 सेकंड तक पुज गया, लेकिन उसकी स्पीड कितनी रही, उसकी वेलोसिटी कितनी रही 8 सेकंड। ठीक, 8 मीटर पर सेकंड। ताइनू आप बोलते हैं कि अगर साडे कोल ग्राफ बिल्कुल इवें स्ट्रेट लाइन दे विच है तो वो साडे कोल कांस्टेंट वेलोसिटी नू डिफाइन करता है। फिर अगेन देखो अगर ग्राफ की ढलान नीचे की तरफ आ रही है तो वो साडे कोल कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन नू रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आ जिहड़ा ब्लू वाला ग्राफ है ये भी सानू कांस्टेंट एक्सेलरेशन नू ही रिप्रेजेंट कर रहा, लेकिन इहदे विच एक्सेलरेशन दी वैल्यू ज्यादा है इस रेड वाले दे तुलना दे विच कंपैरेटिवली। ठीक है, देखो उस तो बाद असीं इसी ग्राफ नू देखो होर डिटेल दे विच अगर स्टडी करना हो तो पहला ग्राफ है साडे कोल वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अच्छा एग्जांपल की लई एग्जांपल ये है साडे कोल कि अगर आप एक बॉल नू ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं फिर वो बॉल कुछ टाइम के बाद क्या आ जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है। जो आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो तुसीं मैनूं ये गल दसो कि बॉल की स्पीड, चलो मैं अगर लेमैन की आम आदमी की भाषा दे विच गल करनी हो तो मैं कह सकती हूँ कि उसकी स्पीड घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, एक पॉइंट से जाके स्टॉप कर जाएगी। मतलब जो मैं उन्होंने ए पॉइंट तो सुटिया बी पॉइंट उत्ते जाके स्टॉप कर गई तो सी पॉइंट से दोबारा वापस आ गई। ठीक है, तो उसकी जिहड़ी वेलोसिटी है वो घटेगी घटेगी घटेगी, बी पॉइंट उत्ते पुज जाएगी। उस तो बाद वो नेगेटिव दे विच आपां उहनूं लिया। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब होया कि वैसे तो उसकी स्पीड बढ़ रही है लेकिन वेलोसिटी जिहड़ी है ना वेलोसिटी वो घट रही है साडे कोल। ठीक है, पहले जिहड़ी असीं एक्सेलरेशन उहनूं दित्ती सी, ठीक है, वो एक्सेलरेशन साडे कोल घट रही है और बी तो जो सी पॉइंट उत्ते आई वो अपने आप आई ग्रेविटी की वजह नाल। ठीक है, इसलिए आपां उहनूं नेगेटिव दे विच कंसीडर कीता। ठीक है, उस तो बाद देखो अगर गल करा सेकंड ग्राफ दी, इस ग्राफ की गल करा डिस्प्लेसमेंट दी,
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ A ਤੋਂ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਧੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ B ਤੋਂ C ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਘਟੇਗੀ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ। डिस्टेंस जो A तो B तक जाएगा तां भी डिस्टेंस बढ़ेगा, B तो C पॉइंट ते जाएगी तां भी उहदा डिस्टेंस की कर रहा बढ़ रहा है। ठीक है, अगर स्पीड की गल करा तो स्पीड उहदी पहले डिक्रीज करेगी फिर इंक्रीज करेगी। ठीक है, उस तो बाद एक्सेलरेशन की गल करा तो एक्सेलरेशन देखो उहदे ते इक्वल लग रही है ग्रेविटी। ठीक है, और ग्रेविटी जिहड़ी है उहदी वैल्यू 9.8 कांस्टेंट हुंदी है, इसलिए साडे कोल ग्राफ की बनेगा कांस्टेंट बनेगा। सॉरी, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਗ੍ਰਾਫ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਫੇਂਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਨੀਚੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੀ ਅਗਰ ਬੋਲ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ कि पहला ऊपर जा रहा सी फिर बाद चो नीचे आ गया। ठीक है, तो एक बार ऊपर जाने की डायरेक्शन नु पॉजिटिव मान लो ते नीचे जाने की डायरेक्शन नु नेगेटिव मान लो। ठीक है, तो इसलिए ग्राफ नेगेटिव एक्सिस दे विच लाई कर रहा। ठीक है, उस तो बाद देखो ये तीन इक्वेशंस ने, ये तुसी सिर्फ रीड आउट करनियां ने, इन्हां नु किवें यूज करना हो आपां न्यूमेरिकल्स दे विच ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨੂਮੈਰਿਕਲਸ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ v u + at। v ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ। v ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ। u ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਸੀ। a ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, t ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ टाइम नहीं। ठीक है, तो मैं इत्थे इवें करदी हां कि हर सिंबल का मीनिंग लिख दिन्नी हां। v साडे कोल किस चीज नूं रिप्रेजेंट करदा है, इनिशियल वेलोसिटी नूं। v साडे कोल किस चीज नूं रिप्रेजेंट कर रहा है, v साडे कोल इत्थे है सॉरी u साडे कोल रिप्रेजेंट कर रहा है। U सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। V सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी, T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम नू, A रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन नू। ठीक है, A की रिप्रेजेंट कर रहा है, A रिप्रेजेंट कर रहा कि एक्सेलरेशन, शॉर्ट फॉर्म दे विच उहनूं आपां एवें लिखते हैं। ठीक है, तो देखो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट तो चले आए, इसका मतलब है कि इनिशियली वो किदे विच सी, इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी होएगी, 0। अगर असीं कवांगे किसी भी न्यूमेरिकल्स विच गिवन दिता होएगा कि अगर मान लो बस स्टॉप तो चल रही है, बस रेस्ट तो चल रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट तो चल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होएगी, 0। लेकिन अगर क्वेश्चन दे विच उन्हें किया है कि साडे कोल ऑब्जेक्ट जिहड़ा है वो रेस्ट उत्ते आ गया, जिवें मैं एग्जांपल दित्ती सी कि बस स्टॉप ते आके रुक गई, तो साडे कोल फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, ते इन्हां इक्वेशंस नू, इन्हां समीकरणस नू किवें आपां न्यूमेरिकल्स दे विच यूज करना, वो आपां नेक्स्ट वीडियो दे विच MCQs दे थ्रू देखांगे कि ये वाले जिहड़े साडे कोल इक्वेशंस ने ये किवें सानू हेल्प करनगियां न्यूमेरिकल्स नू सॉल्व करन दे लई। दूसरी इक्वेशन साडे कोल है S = ut जमा हाफ at²। तो S इत्थे रिप्रेजेंट करदा है डिस्टेंस नू। ठीक है, कि कितना डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है। v² = u² + 2as। तुसी इन्हां इक्वेशंस दी डेरिवेशंस नू स्टडी नहीं करना, बिकॉज तुसी उत्थे थ्योरेटिकल पेपर नहीं देना, तुसी ऑब्जेक्टिव पेपर नू प्रिपेयर कर रहे हो,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ nth ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ u plus half a ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2n-1। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਬੋਡੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਕਿ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ 6th ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 6th ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, which of the following statement is correct। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਡ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस पता है, ठीक है। इत्थे मैं एक होर पॉइंट तुहानू नोट डाउन करवाना चाहती हाँ कि स्पीड और वेलोसिटी जिहड़ी है ना, वो डायरैक्शन दे नाल एसोसिएटेड ने। मतलब स्पीड दोनों दे विच मेन डिफरेंस यही है कि स्पीड दे नाल डायरैक्शन नहीं चेंज करती। स्पीड की जो भी आपां गल करदे आपां डायरैक्शन की गल नहीं करते, लेकिन जो भी वेलोसिटी की गल करते हैं आपां डायरैक्शन की गल करते हैं। इसदा मतलब है कि अगर किसी भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर रही है, इसका मतलब है कि उस बॉडी की डेफिनेटली वेलोसिटी भी चेंज करेगी। ये पॉइंट नोट डाउन कर लो कि अगर किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर रही है, इट मीन्स कि उस बॉडी की वेलोसिटी भी चेंज करेगी, ठीक है। तो अगर तुहानू एक गल क्लीयर हो जाएगी, फिर तुसी इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके नाल दे सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर तुहानू डाउट रहेगा इस मोशन चैप्टर दे विच, तां तुसी उहनू कमेंट सैक्शन दे विच जाके पूछ सकते हो। इस वीडियो नू तुसी इस वीडियो नू तुसी ध्यान नाल सुनना, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आएगा तुसी उहनू कमेंट सैक्शन दे विच जाके मैनू क्वेश्चन कर सकते हो, ते उहदा रिप्लाई जल्दी तो जल्दी मैं करांगी, ठीक है। ते फिर बाकी आपां नैक्सट वीडियो दे विच इसी चैप्टर दे मतलब मोशन चैप्टर दे MCQ क्वेश्चन नू सॉल्व करांगे, ठीक है।